Assalamu alaikum to everyone. So in our last lecture we started off with periodontium. We went through the introduction of this topic, and we also discussed one of the very important components of uh, periodontium in detail, that was cementum. So we went through the basic definition of that hard tissue, and we discussed the different types of it that are present uh, adjacent to the root of the tooth, and we also discussed what are the various functions that cementum is going to provide in the root section of the tooth, and we also discussed the development of cementum in detail. And today we will continue with this topic, as we studied that this periodontium basically consists of four different components: cementum, alveolar bone, periodontal ligaments, and the part of the gingiva that is facing the tooth surface. Okay? These are the four basic components, and today we will go on to study one of the another main component of the periodontium that we call as the alveolar bone, also the alveolar process that consists or that contains the root of the tooth. So same will be the sequence. We will first of all go through the definition of this hard tissue. Then we will discuss how this is going to develop. Then we will go through the different components of this hard tissue that are visible under the microscope, either in the histological section or in the radiographic section. So we come to know what are the different components of the alveolar bone. Then we will also study different structures that are associated with this. Finally, coming to the various functions that are provided by the alveolar bone to the other surrounding tissues that are present around the alveolar bone and also to the tooth surface. Then we will see, if we have time, we will start up with the introduction to the periodontal ligaments. That is the third component of the periodontium, and we will also try to discuss how this structure is going to develop. So starting up with a very basic definition of this topic. So as we know that we have teeth both in the maxilla and the mandible. So we can define this alveolar bone or alveolar process as the part of maxilla and mandible, or part of the jaw that supports the teeth or contains socket for the teeth. Okay? So the part of the jaw that specifically contains the tooth is known as the alveolar socket or the alveoli. Okay? And we define the alveolar bone as the part of maxilla and mandible that is going to support the tooth or contains the socket for the teeth. So this is the very basic definition of uh, the alveolar bone or the alveolar process. Now coming to the development section of this uh, alveolar process or the alveolar bone. अब इसकी जो डेवलपमेंट का सेक्शन है ना, वो आपको you won't find it specifically in this chapter, but if you revise the development of maxilla and mandible, ठीक है, उसमें आपको जो alveolar bone की formation का process है वो उनके साथ मिलेगा. ठीक है, सो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं. हमें पता है कि जो मैंडिबल और मैक्सिला दोनों जो हैं
they develop through intramembranous ossification. It means that इन सब में क्या होता है, दोनों जो बोन्स है इनमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नर्व प्रेजेंट इन दिस सेक्शन, जिसके अराउंड जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू द osteoblast cells and they progress with the development of bone in both of these different types of bones, that is maxilla and mandible. So if we talk specifically about the development of alveolar processes of maxilla, हमें पता है कि maxilla की जो development है वो कहाँ start होती है, around the infraorbital nerve. ठीक है, infraorbital की आगे से एक branch होती है जिसको आप कहते हो anterosuperior dental branch. ठीक है, सो जो एंट्रोसुपीरियर डेंटल ब्रांच होती है दैट इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द इंफ्राऑर्बिटल नर्व. तो जहाँ से ये ब्रांच निकलती है वहाँ पे जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन से वहाँ पे बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. सो दैट इज द पॉइंट व्हाट वी कॉल एज द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द बोन इन केस ऑफ मैक्सिला. अब इसमें आपको मैंने डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला में ये पढ़ाया था कि वंस दिस प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज फॉर्म्ड अराउंड दिस इंफ्राऑर्बिटल नर्व, उसके बाद क्या होता है कि अब बोन जो है वो वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड करती है. ठीक है, सुपीरियरली स्प्रेड कर दिया तो वो किसके साथ मिल जाएगी जाके, विद द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. ठीक है, ये इसी तरह से जब वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व के इर्द गिर्द बोन डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त क्या होता है कि देयर इज बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड अराउंड दिस नर्व, जिसको कि आप बेसिकली नर्व का कैनाल भी कहते हैं. ठीक है, सो दैट बोनी ट्रफ दैट इज डेवलप्ड इन दिस इंफ्रा अराउंड दिस इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जब वो इंफीरियरली एक्सटेंड करेगा तो वो क्या बना देता है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अनदर ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द लेटरल एल्वियोलर प्लेट. ठीक है, वंस द लेटरल एल्वियोलर प्लेट इज फॉर्म्ड, उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि मैक्सिला के केस में मैक्सिलरी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी तरफ से नीचे क्या बन रहा होता है, अंदर वाली साइड पे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. So the bony trough of the infraorbital nerve that is going to extend downward and develop into the lateral alveolar plate, और जो medial alveolar process है और the medial alveolar plate that is going to develop from the fusion of the palatine process and the main body of maxilla. ठीक है, and this is how the medial process of the alveolar plate is going to develop. ठीक है, अब ये बेसिकली बोनी ट्रफ्स बनते चले जाते हैं थ्रू आउट इंफीरियर टू द मैक्सिला, जिसमें कि बेसिकली आपके इस हर बोनी ट्रफ जो होता है उसमें आपका इंडिविजुअल टूथ बर्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एल्व्यूलर प्रोसेस दे डेवलप इन केस ऑफ मैक्सिला. सो व्हेन वी गो थ्रू वन ऑफ द इमेजेस, तो आप देखेंगे ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज है, वहां पे आपको हर दांत इंडिविजुअली नजर आ रहा है. ठीक है ना, और जो रेडियोग्राफ आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो मैक्सिलरी बोन है. ठीक है, इसमें आप देखें कि जो टूथ इरप्ट हुए हुए हैं, ठीक है, दैट इज द डेसिडुअस टीथ. ठीक है, दो आपको दांत नजर आ रहे होंगे जिनकी वाइड सी रूट्स हैं. अब इन रूट्स के दरमियान देखेंगे ये जो एक चीज आपको नजर आ रही है ना, दिस इज बेसिकली द क्राउन ऑफ द परमानेंट टीथ. ठीक है, और ये क्राउन जो है परमानेंट टीथ का, इसकी सराउंडिंग में आप देखो कि एक बड़ी रेडियो ओपेक सी वाइट से कलर की इसकी लाइनिंग है, जिसने इसको इस पूरे क्राउन को या टूथ बर्ड जो है जो कि डेवलप हो रहा है अभी, इसको सराउंड किया हुआ. इसको आप कहते हो बोनी ट्रफ.
और ये इसी तरह से हर दांत को इसने सराउंड किया होता है, ठीक है। उसके साथ वाला आप दांत देखें, दैट इज बेसिकली द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, दैट इज बेसिकली ऑलमोस्ट गोइंग टू erupt इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द भी उसी तरह की बोन की लाइनिंग है। इसको आप कहते हैं द बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि डेवलप होते हैं किस तरह से, कि जब मैक्सिलरी बोन की डेवलपमेंट होती है डाउनवर्ड्स, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल alveolar प्लेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड देन द मीडियल alveolar प्लेट। तो दोनों प्लेट्स की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या बना देती हैं, बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर। बोनी ट्रफ होता है बेसिकली अ नैरो स्पेस, ठीक है, दैट इज गोइंग टू कंटेन द टूथ बड, जिसके अंदर सारी टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट होती, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ बोनी ट्रफ इज गोइंग टू लुक लाइक when it develops around any of the tooth bud, ठीक है। So next we come to the development of alveolar process in case of the mandible। अब मैंडिबल की डेवलपमेंट आपको पता है, ये दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन इस केस में कौन सी नर्व के अराउंड हो रही होती है, अराउंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं इंसाइसिव एंड मेंटल ब्रांच, ठीक है, उनके एंगल से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और जब एक दफ़ा उसकी कंप्लीट बॉडी बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, वंस द बॉडी एंगल एंड रेमस ऑफ मैंडिबल फॉर्मेशन इज कंप्लीट, इसकी सुपीरियर एक्सटेंशन की वजह से बोनी एक्सटेंशन होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो बेसिकली नर्व को भी उन्होंने सराउंड किया होता है। और जब वो सुपीरियरली एक्सटेंड करते हैं तो दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू लेटरल एंड medial alveolar plates that are basically extensions of the body of mandible, ठीक है। अब जो बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको आपने याद रखना है, दीज आर बेसिकली हॉलो और नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स that are basically surrounding the nerve as well as the developing tooth bud, ठीक है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, आप ये इमेज देख सकते हो। जो लेफ्ट साइड पे इमेज है वो बेसिकली वही आपको रिव्यू करवा रहा है जो बेसिक डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल की हेडिंग के नीचे दूसरी आप पिक्चर देखें, वो आपको डायरेक्शन बता रहा है किस तरह से मैंडिबल की जो सारी है वो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है इन अ पोस्टीरियर एंड सुपीरियर डायरेक्शन। इस तरह का जब फ्रेमवर्क बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि एक तो बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि आपको नजर आ रहा होगा राइट वाले इमेज में, ठीक है। एक बिल्कुल एक जो जहाँ पे ये टूथ डेवलपमेंट हो रही है ना, उसके पीछे उसके नीचे आप देखेंगे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। दैट इज जस्ट बिलो जहाँ पे परमानेंट फर्स्ट मोलर लेबल हुआ है ना, उसके नीचे आप देखोगे बिल्कुल एक hollow canal like structure है। This is basically the bony trough for the inferior alveolar nerve, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो इसी तरह से जैसे मैंने आपको मैक्सिला के केस में दिखाया था, यहाँ पे भी आप देखें कि जो टूथ फॉर्म हो रहा है, दिस इज बेसिकली द टूथ बड दैट इज सराउंडेड बाय बोनी एक्सटेंशन, जिसको आप कहते हो बोनी ट्रफ। और ये बोनी ट्रफ किस तरह से बन रहे हैं, बाय द सुपीरियर एक्सटेंशन ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बोनी ट्रफ और द एल्वियोलर प्रोसेस बेसिकली डेवलप from maxilla and mandible, and they surround the tooth bud as well as the nerve that is going to supply these teeth, ठीक है जी। So this is basically how the nerve looks like and what supplies to the different teeth that are present in the oral cavity, ठीक है। ये जो canal like structure होता है, this is
जिसमें से ये पूरी नर्व गुजर रही है, दिस इज बेसिकली द बोनी ट्रफ। और इसी तरह के ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं मीडियल और लेटरल एल्वियोलर प्रोसेस, वो हर दांत के सराउंडिंग एरिया में होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, वन ऑफ देम इज नोन एज द एल्वियोलर प्रोसेस which has three different components: cortical plate, spongiosa and the alveolar bone. फाइनल कंपोनेंट है alveolar bone proper भी कहा जाता है। दिस इज बेसिकली, ये जो बुक में 10 केस में मेंशन किया होगा, द पार्ट ऑफ द alveolar bone that provides attachment to the periodontal ligaments। ठीक है, ये टर्म उसने स्पेसिफिकली यूज नहीं की हुई alveolar bone proper। ठीक है, बट फॉर योर मेमोरी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्वियोलर बोन प्रॉपर है, ये एल्वियोलर बोन के कौन से रीजन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, वो आगे हम इमेजेस में उसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी हैव कम टू नो इज दैट बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस: कॉर्टिकल प्लेट्स। कॉर्टिकल प्लेट्स भी दो टाइप्स की होती हैं, एक ऑन द इनर साइड ऑफ द टूथ एंड वन इज ऑन द आउटर साइड ऑफ द टूथ। Then is the central spongiosa, that is also known as the portion of the tubercular bone। ठीक है, फिर आ जाती है वही alveolar bone, वो आप भी इमेज में देख लेते हैं। Second component is the alveolar bone proper, or the bone that provides part of the alveolar bone that provides attachment to the periodontal ligaments। ठीक है, फिर थोड़ी सी इनकी वेरी दिस इज अ वेरी फाइन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स। कॉर्टिकल बोन आपको बताया था। ठीक है, एक तो इनर और आउटर कॉर्टिकल बोन होती है दैट इज सराउंडिंग द टूथ, एंड व्हाट दिस कॉर्टिकल प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ लमेलर बोन, also known as the compact bone। So the bone that is surrounding the tooth, or that we call the cortical bone, इसकी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन उसी तरह से होगा जिस तरह से बाकी बोन्स का होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट जो कॉम्पैक्ट बोन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ द हेबरियन सिस्टम। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस है वो डिफरेंट पोर्शन ऑफ मैक्सिला और मैंडिबल में जो है ना वेरी करती है। ठीक है, जैसे कि जो एंटीरियर सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपके एंटीरियर टीथ हैं, बोथ इन केस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल, जो एंटीरियर रीजन होता है टीथ का, वहाँ पे जो आपकी कॉर्टिकल प्लेट्स होती हैं दे आर मोस्टली थिन। ठीक है, और जिस तरह से आप पोस्टीरियरली मूव करते हो प्रीमोलर और मोलर रीजन में, वहाँ पे जो आपकी कॉर्टिकल प्लेट्स हैं वो थिक होती चली जाती हैं, बिकॉज tooth is big, it needs more support, so the cortical bone that is present in the posterior tooth is thicker as compared to the anterior teeth। ठीक है, अब लास्ट इसकी लाइन लिखी हुई है, there are some regions in which the cortical as well as the alveolar bone that is fused। यानी कि कुछ जो आपका इंटीरियर रीजन है, आपको बताया कि यहाँ पे चूंकि जो कॉर्टिकल प्लेट्स हैं थिन होती हैं, तो इस वजह से इन कॉर्टिकल जो अक्सर जो एंटीरियर रीजन में जो कॉर्टिकल बोन होती है, इसमें कभी कभार जो हेबरियन सिस्टम है वो कभी कभी एब्सेंट भी होता है। ठीक है, क्योंकि द कॉर्टिकल बोन इज डायरेक्टली फ्यूज विद द एल्वियोलर बोन पार्ट। ठीक है, अब ये एक इमेज है, ठीक है, दांत का पूरा, इसमें आपको बताया हुआ है व्हाट इज द एल्वियोलर प्रोसेस। ये आप एरो हेड की डायरेक्शन देख लें, ये बोन की जो पूरी एक एक्सटेंशन है टिल द एल्वियोलर क्रस्ट रीजन। ठीक है, जो बिल्कुल एक प्रोजेक्शन सी है ना एल्वियोलर प्रोसेस की, इसको आप कहते हो एल्वियोलर क्रस्ट रीजन। यहाँ से लेके ये नीचे तक जितनी भी एल्वियोलर बोन है, दिस इज नोन एज द एल्वियोलर बोन और आल्सो द एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है, अब अगर इस बोन के स्ट्रक्चर को आप फोकस करो तो आप देखेंगे कि एक ये येलो सा इसका जो आउटर रीजन है दैट इज स्मूथ। ये जो स्मूथ सा रीजन है, दिस इज बेसिकली नोन एज द कॉर्टिकल बोन, जिसकी तरफ ये ब्लैक सा एरो हेड भी डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है,
तो जो रूट वाली साइड के ऊपर जो ये पोर्शन है, दिस इज द इनर कॉर्टिकल बोन और द इनर कॉर्टिकल प्लेट। बाहर वाली साइड पे जो कॉर्टिकल बोन लेबल हुआ हुआ है स्पेसिफिकली, दिस इज द आउटर कॉर्टिकल प्लेट रीजन। ठीक है, अंदर वाली साइड पे जो स्पॉन्जियोजा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द टुबरकुलर बोन। ठीक है, फिर तो ये बेसिकली जो हैं कंपोनेंट्स हो गए किसके, एल्वियोलर प्रोसेस के। इनर और आउटर कॉर्टिकल बोन्स, tubercular bone, and then we have the alveolar bone। ठीक है, वो एज इट इज उसने टूथ को सराउंड किया। ठीक है, फिर जो स्पेसिफिकली एल्वियोलर बोन प्रॉपर क्या होता है, वो यहाँ पे रिफर किया हुआ है जो इनर कॉर्टिकल प्लेट है। ठीक है, इनर कॉर्टिकल प्लेट को स्पेसिफिकली एल्वियोलर बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि रूट से एक्सटेंड करते हैं पेरियोडोंटल फाइबर्स। ठीक है, फ्रॉम द सीमेंटम, और अटैच होते हैं इस इनर साइड और द इनर सरफेस ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि एल्वियोलर बोन प्रॉपर स्पेसिफिकली किसको कहा जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन टू विच द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स आर अटैच्ड फ्रॉम द रूट सरफेस। ठीक है, तो एल्वियोलर बोन प्रॉपर की बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है कि it is the part of the bone on which the periodontal ligaments are attached, और उसके साथ क्या होता है, it also contains the Havarian system in most of the cases। ठीक है, so this is basically how you can define an alveolar bone proper। It is the part of the alveolar bone that consists of the Havarian system and has also attachment for the periodontal ligaments। ठीक है जी, so this is how we can see different components of the alveolar bone। Next, we come to the various structures that are visible in the alveolar bone, especially in the radiographic section। ठीक है, या अगर आप जो टूथ जो है उसको रिमूव कर दें तो भी आपको काफ़ी दो तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे। उनमें से एक यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का वर्ड आपने एनाटॉमी में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये होता क्या है, दैट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट उस बोन के लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसमें बेसिकली स्मॉल परफोरेशंस होती। ठीक है, तो ये जो इनर और आउटर कॉर्टिकल प्लेट ऑफ एल्वियोलर बोन हमने डिस्कस किया है ना, तो इनर आउटर पार्ट जो होते हैं एल्वियोलर बोन के, बोथ दीज पोर्शन आर परफोरेटेड। ठीक है, तो इनको आप क्या कह सकते हो, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक है, सेकेंडली एक और जो स्ट्रक्चर नजर आता है आपको इन रेडियोग्राफ सेक्शन ऑफ द एल्वियोलर बोन, दैट इज द लेमिना ड्यूरा। अब बेसिकली लेमिना ड्यूरा होती क्या है, दिस इज अ फाइन रेडियो ओपेक लाइनिंग अराउंड द रूट सरफेस ऑफ द टूथ। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, जो कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पे तो एक तो टूथ प्रेजेंट है ना, दूसरे में उसने टूथ को रिमूव करके दिखाया। ठीक है, तो ये इनर कॉर्टिकल प्लेट्स के ऊपर भी आपको नजर आएंगी स्मॉल परफोरेशंस है। इसी तरह से ये परफोरेशंस लिंक्ड हैं टू द आउटर कॉर्टिकल प्लेट्स, जिसके ऊपर भी स्मॉल एक्सटेंशंस। बिल्कुल उसकी बेस के ऊपर आपको नजर आएगा एक मेन जो कैनाल है। ठीक है, जहाँ से बेसिकली मेन जो नर्व है वो एंटर हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह से आउटर कॉर्टिकल प्लेट्स के ऊपर भी परफोरेशन है, इनर कॉर्टिकल प्लेट्स में भी परफोरेशन। ठीक है, तो अब इन परफोरेशंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट it provides a rich blood supply to the bone as well as the periodontal ligaments। ठीक है, and even to the tooth। so ये जो परफोरेशन है इनका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, कि जितनी भी ब्लड और नर्व सप्लाई है वो होती है थ्रू, वो पास करती है थ्रू दीज स्मॉल परफोरेशंस। ठीक है, so this is the basic significance of the cribriform plate or the perforations that are present on the cortical plate of the alveolar bone।
ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर हमने एक पढ़ा लेमिना ड्यूरा। लेमिना ड्यूरा होता है फाइन थिक रेडियो ओपेक लाइनिंग दैट इज विजिबल इन अ रेडियोग्राफ अराउंड द टूथ। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रेडियोग्राफ। इसमें आप फोकस करें, जो वाइट कलर के दो डबल एरोज आपको नजर आ रहे हैं ना, वो बेसिकली डिमार्क कर रहे हैं अ फाइन लाइनिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड दिस मोलर। ठीक है। अब ये पार्ट जो है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन। ठीक है। और ये वही एल्वियोलर बोन का पार्ट है जहां पे पीडीएल अटैच हुए होते हैं। ठीक है। अब वो पीडीएल अटैचमेंट की वजह से जो एल्वोलर बोन का इनर पार्ट है, दैट इज द इनर कॉर्टिकल प्लेट, वो आपको इस तरह से थिक या रेडियो पेक नजर आता है एज कम्पेयर टू द अदर एल्वियोलर बोन। अब ऑब्वियसली जो पीडीएल के कोलेजन फाइबर्स हैं वो आपको रेडियोग्राफ में नजर नहीं आएंगे। ठीक है। वो या आपको खाली स्पेस के तौर पर नजर आएगी, या अगर वो बोन के साथ अटैच हैं तो इस तरह से आपको रेडियो पेक नजर आएगा रीजन। ठीक है। बाकी आप इर्द गिर्द बोन का रीजन देखें, दैट इज लेस रेडियो ओपेक एज कंपेयर टू दिस रीजन। सो दिस हाई रेडियो ओपेक रीजन और द थिक रीजन that is surrounding the tooth, this is known as the lamina dura। ठीक है। अब ये जो थिक पोर्शन है जिसमें कि आपको नजर आ रही है, ये किस वजह से होता है? बेसिकली द पेरियोडोंटल ligaments they are extended into the bony structure। ठीक है। अब थ्रू आउट द टूथ स्ट्रक्चर जितना जितना भी उस दांत का जो रूट वाला सेक्शन है, उस पूरे स्ट्रक्चर में सारी जो उसकी रूट है उसके इर्द गिर्द इसी तरह से पेरियोडोंटल लिगामेंट्स सारी रूट्स के इर्द गिर्द अटैच हुए होते हैं। ठीक है। तो ये वाला बोन का जो पोर्शन होता है, जिसको कि आप रेडियोग्राफ में आपको लेमिना ड्यूरा नजर आ रहा होता है, ठीक है, उसको बेसिकली आप बंडल बोन भी कहते हैं। ठीक है। तो द बोन डायरेक्टली लाइनिंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ द बोन that consist of the collagen fiber bundle or the periodontal ligaments, this is known as the bundle bone। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, bone lining the inner aspect of alveolar bone that consist of the collagen fiber bundle। ठीक है। this is the complete definition of bundle bone। ठीक है। these are basically the extension of the periodontal ligaments into the cortical plate of the alveolar bone। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है वही हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द पीडीएल फाइबर्स। ठीक है। फिर एक उसकी हिस्टोलॉजिकल फीचर लिखा हुआ है कोर्स फाइबर टेक्सचर। क्या होता है कोर्स फाइबर? बेसिकली ये जो एक्सटेंशन होती है ना, जो कि पीडीएल की, जो कि बोन में एक्सटेंड हुई हुई है, वो बेसिकली होती हैं थिक एज कम्पेयर टू द अदर कोलाजन फाइबर। ठीक है। तो इसलिए उसको कोर्स फाइबर टेक्सचर कहा जाता है। कोर्स फाइबर मींस thick fibers that are extending into the alveolar bone। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू वन ऑफ द, ये एक हिस्टोलॉजिकल इमेज है। ठीक है। उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो हेवरियन सिस्टम है, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट। ठीक है। दैट हैज द हेवरियन सिस्टम। ठीक है। उस हेवरियन सिस्टम के एडजेसेंट क्या होता है? The bundle bone। Now this bundle bone, this is the part of the alveolar bone that consists of the attachment for periodontal ligaments। इसके नीचे ये शार्पेस्ट फाइबर्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है। तो ये दीज पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, अब इन पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का ये जो वाइट सा रीजन है ना, इसके बाद इसको आप एज्यूम कर सकते हैं द रूट ऑफ द टूथ। तो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते हैं इनकी अटैचमेंट, और इस तरह से पूरी एक्सटेंड होके अटैच हो जाते हैं ऑन द इनर कॉर्टिकल प्लेट ऑफ द एल्वियोलर बोन। ठीक है।
और जो बेसिकली ये जो अटैचमेंट हुई होती है एल्वियोलर बोन की और पीडियल फाइबर्स की, इसको आप, इस रीजन को आप कहते हो द बंडल बोन रीजन। ठीक है। So now by discussing all these different features of the alveolar bone and the development, we can also find out the various functions that are provided by the alveolar bone। इसमें नंबर 1 आ जाता है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन आ जाता है बेसिकली, that is the anchorage of tooth root into the socket। Secondly, it is going to help the teeth for better occlusion। ऑब्वियसली जब alveolar bone आपकी जो है वो टूथ को एंकर करके रखेगी या इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड रखेगी, तो एडजेसेंट टीथ के साथ उसकी ओक्लूजन जो है वो अच्छी हो जाती है। अगर एंकरेज ही नहीं होगी, दांत अगर मूव करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली ओक्लूजन जो है वो एडजेसेंट टीथ की डिस्टर्ब हो जाती है। ओक्लूजन बेसिकली होती है तो जहाँ पे जिस तरह से जिस पोजीशन में आपके अपर और लोअर टीथ जो हैं वो मीट करते हैं आपस में, उनकी ओक्लूजल सर्फेसेस, दैट इज द ओक्लूजन। So they anchor the root, help the teeth to move during for a better occlusion, absorb the absorb and distribute the occlusal forces। कि वही एक बात आ गई, जब क्योंकि दांत के नीचे से एंकरेज अच्छी है, तो जितनी भी आप मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है, दांतों की स्पेशली ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, ठीक है, तो ये जो एल्वियोलर बोन होती है क्या करती है, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट द फोर्स। एब्जॉर्ब खुद भी करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड्स टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है। फिर आपने एक फंक्शन पर एक और जो कंपोनेंट पढ़ा था वो था कि इनर एंड आउटर कॉर्टिकल प्लेट्स जो होती है एल्वियोलर बोन की, वो परफोरेटेड होती है। ठीक है। तो जो परफोरेशन होती हैं उनमें से क्या सारी जो है आपकी ब्लड और नर्व सप्लाई पास करती है। ठीक है। So those perforations of the alveolar bone, they basically supply vessels to the periodontal ligaments। ठीक है। फिर आपने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, दैट इज द एल्वियोलर बोन। तो जो बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं या एल्वियोलर प्रोसेस बनता है, दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल टूथ बड। ठीक है। तो जब तक दांत आपका मेच्योर नहीं होता, वो इस बोनी ट्रफ या एल्वियोलर बोन के अंदर जो है वो एम्बेडेड रहता है, और किसी किस्म का शॉक या इंजरी जो है वो इस टूथ बर्ड को डैमेज नहीं कर सकती। So this alveolar bone basically keeps the tooth bud until or unless the tooth is completely mature। ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेस द इरप्शन ऑफ डेसिडुअस एंड परमानेंट डेंटिशन। वो किस तरह से करता है, अब आपको पता है कि देयर आर अबाउट 28 to 32 teeth that are going to erupt in your oral cavity। तो हर दांत का जो है वो अपना जो है ये बोनी हर दांत का अपना जो है एल्वियोलर प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अगर ये एल्वियोलर प्रोसेस ना हो, तो आपके जो दांत इरप्ट होंगे वो बड़ी हैप्पैज़र्ड या रैंडम पोजीशन में होंगे। ठीक है। अब चूंकि ये हर दांत का अपना एल्वियोलर प्रोसेस है, तो जब भी दांत इरप्ट करेगा तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में करता है। ठीक है। So this is how the alveolar bone provides an organized eruption of both deciduous and permanent teeth। If this alveolar bone is not present, what is going to happen? जो आपके दांत रप्ट होंगे वो बड़ी हैप्पैज़र्ड पोजीशन में होंगे और प्रॉपर occlusion भी गेन नहीं होगी। So this is how you can find out different function of the alveolar bone once you study its different structures। ठीक है। अब ये सारे फंक्शन जो है स्पेसिफिकली आपकी बुक में शायद ना लिखे, but when you study different components of this alveolar bone, you can also find out these different functions of this bone। ठीक है। So any questions that you have regarding this alveolar bone, I can repeat it right now। ठीक है। आगे हमने पेरिडोंटल लिगामेंट स्टार्ट करना है।
So any questions that you have regarding this topic you can ask, so then we can start up with the next topic. जी, any questions? अच्छा, तो one of the students has asked about this alveolar socket. इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज है ना यहाँ पे, तो एक में आप देख रहे हैं कि ये दांत है, ठीक है। एडजेसेंट इसका इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा है द टूथ हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो ये जो टूथ रिमूव, ये जिस एरिया में ये टूथ प्रेजेंट होता है ना, दिस इज बेसिकली नोन एज द tooth socket. It can be defined as the part of the alveolar bone that holds the root of the tooth is known as the socket. alveolar socket भी कहते हैं, और इसके लिए जो टर्म यूज होती है that is the alveoli और the alveolus, ठीक है। तो इस alveolus को बेसिकली आप कहते हो the socket that is basically holding the root of the tooth, ठीक है। Any other questions? सो इसमें आपने पूछा है डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल का। इस टॉपिक में ना स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल से ज़्यादा आपने फोकस रखना है द डेवलपमेंट ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस, ठीक है। स्टार्ट आप वहीं से करेंगे, जो बेसिक डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल है, ठीक है। इसमें आपने बेसिकली याद रखना है कि डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जिसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं मेंटल एंड इंसाइसिव नर्व, ठीक है। उसके सराउंडिंग में जो मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होगा, ठीक है। वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जब एक दफ़ा डेवलप हो गया तो वहाँ से बोन फॉर्मेशन जो है अब उसकी इनिशिएट होगी, और वो किस तरह से एक्सटेंड करती है, पोस्टीरियरली एंड इन सुपीरियर डायरेक्शन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट साइड्स की पहले बॉडी ऑफ मैंडिबल बनेगी, फिर रेमस ऑफ मैंडिबल। अब ये जिस जिस तरह से बोन की डेवलपमेंट हो रही है ना मैंडिबल की, ठीक है,
अब आपको पता है कि इसी पूरी जो लेंथ होती है बोन की, इसमें यहाँ पे नर्व के इर्द गिर्द भी जो है वो बोन की डेवलपमेंट होगी। तो बोन के उस नर्व के इर्द गिर्द जो बोनी स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको आप कहते हो बोनी ट्रफ। ट्रफ बेसिकली होता है, इट इज अ नैरो स्पेस और अ हॉलो स्पेस जिसके अंदर कोई भी अब स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जैसे कि नर्व है। ऑब्वियसली उसने जो बोन बनेगी दैट इज गोइंग टू आल्सो कवर द होल ऑफ द inferior alveolar nerve and its branches। ठीक है, तो उस बेसिकली रीजन को आप कहते हो तो एल्वियोलर ट्रफ। तो इसी तरह से बोन एक्सटेंड करती है उस नर्व को सराउंड करती हुई ना पोस्टीरियर एंड सुपीरियर डायरेक्शन, फिर रेमस ऑफ मैंडिबल बनेगा। ठीक है, तो जब बॉडी ऑफ मैंडिबल कंप्लीट हो जाती है ना, अब आपको पता है कि जो एल्वियोलर प्रोसेसेस हैं वो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं सुपीरियर टू द बॉडी ऑफ मैंडिबल। वंस द बॉडी ऑफ मैंडिबल फॉर्मेशन इज कंप्लीट, उसी की बॉडी ऑफ मैंडिबल की जो है ना दैट देयर इज एक्सटेंशन इन द सुपीरियर डायरेक्शन, जिसकी वजह से लेटरल और मीडियल एल्वियोलर प्लेट्स बनती है। अब ये लेटरल और मीडियल जो है ना वो दांतों के हिसाब से ही होता है। उसके डिस्ट्रिक्ट पे जो बोन बनेगी दैट इज द लेटरल एल्वियोलर प्लेट, मीडियल एस्पेक्ट पे जो बनेगी दैट इज द मीडियल एल्वियोलर प्लेट। अब ये दोनों बेसिकली प्रोजेक्शंस जो हैं वो एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसी दौरान आपकी टूथ डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो जो टूथ बड होता है ना दैट इज देन सराउंडेड बाय इंडिविजुअल बोनी ट्रफ और द alveolar plates। ठीक है, that is basically going to surround the tooth bud until it's going to erupt into the oral cavity। ठीक है, तो दो जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनके गिर्द बोनी ट्रफ या हॉलो चैनल्स बनते हैं। एक तो जो आपकी नर्व है और दूसरा जो आपका टूथ बर्ड होता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। ये जो ब्लैक वाली जो पिक्चर है जो आपको आपकी राइट साइड पे शायद नजर आएगी, उसमें देखें कि ये जो अभी जो क्राउन ऑफ द टूथ है ये पोस्टीरियर टीथ का, ये अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो बोन है दिस इज बेसिकली नोन एज द बोनी ट्रफ दैट इज सराउंडिंग दिस टूथ बर्ड। ठीक है, इसके नीचे आप देखें अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो आपको एक बड़ा वो चैनल सा एक नजर आएगा, नैरो सा चैनल। ये जो नैरो सा चैनल होता है दिस इज बेसिकली द बोनी ट्रफ फॉर द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, जिस तरह से बेसिकली बोन डेवलपमेंट होती रहती है उसी तरह से पूरे नर्व के इर्द गिर्द भी और जो टूथ बर्ड हैं उनके इर्द गिर्द भी बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। और जो बोनी ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर इन दांतों के इर्द गिर्द बनते हैं उनको आप कहते हो दे फर्दर डेवलप इनटू द एल्वियोलर प्रोसेसेस। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो सारी क्लास के लिए मैंने कहनी है वो ये है कि आपने याद रखना है मैंडिबल मैक्सिला की डेवलपमेंट का आपसे जब भी पूछा जाए तो इट इज़ इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। जो मैं पेपर्स भी जो मैंने देखे हैं जो एमसीक्यूज में ब्लंडर मारा हुआ था उसमें एक एमसीक्यू आया हुआ था कि एंडोकॉन्ड्रल जो है डेवलपमेंट वो किसकी होती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ने मैक्सिला मैंडिबल जो है उसको मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिला और मैंडिबल का आपने याद रखना है 70-80% जो इनकी डेवलपमेंट होती है दैट इज थ्रू द इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। 30% बाद में जो बनते हैं कार्टिलेज, उनका ज़्यादातर रोल जो है इसकी इन स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ में होता है। ठीक है, सो वेन एवर यू आर आस्क्ड अबाउट the development of maxilla or development of mandible, you have to keep in mind that they are going to develop from intramembranous ossification। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है डेफिनेशन ऑफ बंडल बोन। बंडल बोन होती है इट इज द बोन to which the periodontal ligaments are attached, or the inner aspect of the bone or the inner lining of the bone to which the collagen fibers collagen fiber bundle और PDL are attached। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन सही नहीं लिखी हुई। ठीक है, वी मूव टू दिस
ठीक है, यहाँ पे आप देखें बोन डायरेक्टली लाइनिंग द इनर एस्पेक्ट ऑफ एल्वेलर बोन, इसके आगे आप लिखेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर बंडल इज नोन एज द बंडल बोन। ठीक है, इसको बंडल बोन कहते हैं इसलिए कि इसके ऊपर कोलेजन फाइबर बंडल जो है उसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल क्लियर हो गई। ठीक है, तो इन दोनों बोन से रिलेटेड बड़ा क्लियर याद रखना है। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको इसका अक्सर क्वेश्चन भी आता होता है, अभी मैंने पेपर में नहीं दिया है क्योंकि मुझे था देयर मस्ट बी कंफ्यूजन। ठीक है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट इवन फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन वाइवा में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली उनका मकसद यही होता है पूछने का। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स प्रॉफ के वाइवा में ये मिस्टेक कर रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था डेवलपमेंट ऑफ मैंडिबल, वो कार्टिलेज से शुरू हो जाते थे, सिम्फिजियल कार्टिलेज, कंडाइलर कार्टिलेज। ठीक है, वो स्टार्ट नहीं करना, आपने स्टार्ट करना है जहाँ प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है। ठीक है, बिटवीन द इंसाइसिव एंड मेंटल ब्रांच। ठीक है, वो सारी इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बताने के बाद आपने जो है वो बताना है कि जब ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हो जाती है सारी, उसके बाद ये 3 कार्टिलेजेस होते हैं जो बेसिकली ग्रोथ करवाते हैं, एक कंडाइलर कार्टिलेज, सिम्फिजियल कार्टिलेज, कोरोनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, so any other questions regarding this topic, so that we can move to the, or we can start regarding the periodontal ligaments. ठीक है, दूसरा जो बंडल बोन से रिलेटेड चीज़ आपने याद रखनी है वो यही है कि यही जो बंडल बोन है ये रेडियोग्राफ में आपको थिक रेडियो पे एक लाइन नजर आती है जिसको वहां पे आप लेमिना ड्यूरा कह रहे होते हो। ठीक है, दैट इज basically the inner aspect or inner lining of the alveolar bone that consists of the collagen fiber bundle. Okay, so next we will start up with very brief introduction of the periodontal ligaments. इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन भी आता होता है आपके प्रॉफ में, स्पेसिफिकली जो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना। So today we will also start up with
periodontal ligaments. So like other tissues that are present in the surrounding of the tooth, cementum और alveolar bone के comparison में, this is a soft specialized connective tissue situated between cementum covering the root of the tooth and the bone forming the socket. This is the basic definition of the periodontal ligaments. ठीक है, तो एक और बड़ी है तो बड़ी बेसिक सी चीज जो आपको पता होना चाहिए, अक्सर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेरियोडोंशियम है, इसमें हार्ड टिश्यू कौन सा है, सॉफ्ट टिश्यू कौन सा है. तो हार्ड टिश्यू इज द cementum and the alveolar bone. Soft tissue are the gums, the gingiva, or the and also the periodontal ligaments. This is a specialized soft tissue that is situated between the cementum and the bone forming the socket. ठीक है, तो फिर ये बेसिक इंट्रोडक्टरी स्टफ है पेरिडोंशियम से रिलेटेड. इसकी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है उसकी. अब ये बेसिकली जो 0.15 to 0.38 मिलीमीटर दिया हुआ है, दिस इज द normal range or the normal width of the periodontal ligaments that you could find in any healthy individual. ठीक है, अब ये जो width है ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. एक तो एज फैक्टर भी हो सकता है. एज फैक्टर से क्या होता है कि ये जो कोलेजन फाइबर बंडल होता है पीडीएल का, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से इनकी width जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी. ठीक है, एक फैक्टर हो सकता है एनी सॉर्ट ऑफ अ डिजीज रिलेटेड टू द पेरियोडोंटल टिश्यू और रिलेटेड टू द गम्स, वो भी इसकी वेट्स को जो है वो अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, फिर चूंकि आपको पता है कि कॉर्टिकल जो बोन होती है इर्द गिर्द पीडीएल के, उसने न्यूमरस परफोरेशंस होती हैं, तो सारी जितनी भी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो थ्रू क्रिप्रिफॉर्म प्लेट की जो ब्लड से जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, उनके थ्रू पीडीएल के को मिले. ठीक है, और फिर पीडीएल्स के अपने कुछ सेल्स भी होते हैं. ठीक है, जो कि इसकी रीमॉडलिंग में इसको हेल्प करते हैं. ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट में भी और इसकी मेंटेनेंस में वो इसको फंक्शन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. ठीक है, अब हमें पता है कि जो ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट there is a group of cells that is surrounding the tooth germ. ठीक है, अब जब आपको पता था कि इनर और आउटर एपिथेलियल की जब एक्सटेंशन होती है, उसके जो इनर एस्पेक्ट पे सेल्स होते हैं दैट आर द डेंटल पेपिला सेल्स. ठीक है, उसके आउटर एस्पेक्ट पे जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं दोज आर द डेंटल फॉलिकल सेल्स. So these
Dental follicle cells, these are the cells that basically give rise to the supporting structures or the supporting tissues of the tooth. अब वो supporting tissues वही होते हैं जो periodontium में आते हैं, ठीक है, that is cementum, PDL, alveolar bone and the gingiva. तो होता क्या है कि जब आपको बताया था कि जो क्राउन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इनर आउटर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रोथ जो है उनको डेवलप करवा देती है इनटू हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ, जिससे कि आगे वो एपिथेलियल डायाफ्राम बनता है और सारी आगे से रूट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है, जो डेंटल फॉलिकल सेल्स हैं एडजेसेंट टू द हार्टविक रूट शीथ वो स्टार्ट करवा देते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सीमेंटम, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ डेंटल फॉलिकल सेल्स जो कि जैसे जैसे आपकी रूट फॉर्मेशन हो रही होती है उसी तरह से साथ ही पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की भी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। सो द डेंटल फॉलिकल सेल्स दैट आर प्रेजेंट adjacent to the root they initiate the development of the periodontal ligaments once the root formation is almost complete, ठीक है। ये बेसिकली सारे जो डेंटल फॉलिकल या डेंटल पेपिला सेल्स होते हैं these are basically the mesenchymal cells, ठीक है। So once the root formation is going on, the mesenchymal cells that are present in the dental follicle region they are going to start the secretion of the collagen type 1, ठीक है। अब ये जो collagen type 1 होती है इसकी कंटिन्यूस सिक्रीशन की वजह से वो सारी पहले पीडीएल की ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज देन कन्वर्टेड इनटू collagen fiber bundle, that is basically the thread like structure that go on to attach to the alveolar bone, ठीक है। अब इसकी जब मैट्रिक्स ले हो रही होती है, ठीक है, so these bundles that are going to develop from the mesenchymal cells जो कि collagen type 1 होती है वो क्या करते हैं, they then extend into the bone, ठीक है। यहाँ पे ये आप एक इमेज देखो, इसमें जो लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज है ना, that is basically the time when the periodontal ligament development initiates, ठीक है। अब इसमें और जो राइट साइड के ऊपर पिक्चर है इसमें बड़ा एक फाइन सा डिफरेंस है, ठीक है। जो लेफ्ट वाली पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है, अभी सिर्फ कोलेजन मैट्रिक्स ले हुई है, ठीक है, कोलेजन फाइबर बंडल्स नहीं अभी बने, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये मैट्रिक्स ले हो जाती है और बोन भी डेवलप हो गई है यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है कि जो फाइबर बंडल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं इन एडजेसेंट टू द बोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट वाली पिक्चर में देखोगे जो कोलेजन मैट्रिक्स है दिस इज समवट पैरेलल टू द रूट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब यहाँ पे कोलेजन फाइब्रल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं बंडल की फॉर्म में तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं टू द रूट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर आप इसको हेमेटॉक्सिलिन इयोसिन स्ट्रेन जो स्ट्रक्चर है ना पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का, इसको गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि जो राइट साइड वाली पिक्चर है इसमें जो फाइबर बंडल या जो मैट्रिक्स की नजर आ रही है वो परपेंडिकुलर है, एक्सटेंड कर रही है एज कंपेयर टू द पिक्चर ऑन द राइट साइड। तो इस तरह से बेसिक जो है वो डेवलपमेंट होती है पीडीएल की स्टार्ट। इसको फर्दर हम कंटिन्यू कर लेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। So from the next lecture we will start the development of PDL and we will try to complete this chapter, ठीक है। So any questions you have regarding whatever we have discussed today apart from development of PDL?
Okay, we will start with development of PDL in our next lecture. Any questions?